Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have our 10th lecture, and this lecture is about some important terms related to inferential statistics. As we have already discussed in the last lectures, the differences between the descriptive and inferential statistics. तो आज जो है हम थोड़ा सा मुख्तलिफ काम करेंगे, वो इस तरह कि हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनको समझेंगे और उन पे आपसे बात करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, दैट इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल. लेट मी स्टार्ट द वीडियो एंड यू कैन गेट द बेटर कॉन्सेप्ट अबाउट what is confidence interval and what is the significance of it. So let me start. So I am starting the video. Everyone please focus and then we can talk about it. In this lesson, you'll be learning about confidence intervals. When we try to estimate a population parameter based on a sample statistic, this is like fishing with a fishing pole. And there's nothing wrong with fishing this way. It's a perfectly good way to fish. However, you'd be much more likely to catch a fish if you cast an entire net. How much more likely are you that you'll catch a fish? Well, that depends on the size of the net. The larger the net, the more confident you can be that you'll actually capture a fish. This net is much more likely to catch a fish than the smaller net. Though this example isn't exactly the same as building a confidence interval, because we consider a parameter to be a non-moving number and not a moving fish amongst water, this idea that providing an interval and not just a single estimate will help us gain confidence in our ability to capture a population parameter is at the core of confidence intervals. And the wider our interval, the more confident we can be that we capture our parameter of interest. Let's take a closer look. So what is confidence interval according to the concept discussed in the video? बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल है क्या? आपने फिशिंग करनी है और यू टेक अ फिशिंग रॉड एंड गो टू द सी, बट यू कैन कैच ओनली वन फिश if you are catching it with a certain type of knob. But if you have a net, you have the idea of getting more fishes in a net. अगर आप मछली पकड़ें तो एक कांटा लेके जाएंगे तो हो सकता है एक ही मछली आए. अगर सही जगह पे नहीं फेंका गया तो सही मछली नहीं आ सकती. लेकिन अगर आप नेट फेंकेंगे यानी आप डेटा के अंदर कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, सो यू विल टेक द इंटरवल. एक बड़ा इंटरवल ले लेंगे, एक बड़ा एरिया ले लेंगे. फ़र्ज़ करें आपने ले लिया 4 से 10 तक, तो आपकी वैल्यू इस एरिया में लाई करती है. इस बात की श्योरिटी हमें मिल जाएगी या हमारा कॉन्फिडेंस इस बात पे बढ़ जाएगा. सो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ ऑल अबाउट टेकिंग द बिग इंटरवल इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सिंगल वैल्यू. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. लेट अस मूव फॉरवर्ड. दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है. अच्छा, स्टैटिस्टिक्स के लोग इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के फेनोमेना को इस्तेमाल करते हैं. किस लिए? वेदर द गिवन हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. तो ये इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. इसका पहला स्टेप होता है कि दो चीज़ें हैं इसमें, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. व्हाट इज़ नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस की बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर कोई मुजरिम कटहरी में खड़ा कर दिया गया है तो वो इनोसेंट है. अभी उसके ऊपर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, so it is null hypothesis. H naught, it is represented by H0 और H naught कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वी स्टार्टिंग गेटिंग द इन्फॉर्मेशन. हमें उसके बारे में पता लगता है कि ये जुर्म है, ये जुर्म है, ये जुर्म है. आफ्टर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन मीन्स दैट द पर्सन इज प्रूवन गिल्टी. सो दिस हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. The hypothesis which is fetched or which can be stated after getting the information is called alternative hypothesis, and the prior in which we have no information is null hypothesis. Let us consider it or learn it with the help of example. हमारे पास
एक प्लान है। अच्छा, हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के तरीके क्या है? स्टेट द हाइपोथेसिस, और इसमें नल हाइपोथेसिस भी होता है इन विच वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। द सेकंड इज अल्टरनेट। वी मूव टू द सेकंड स्टेप इज टू फॉर्मेट एन एनालिसिस प्लान। इसमें क्या होता है, आप अपना प्लान डिसाइड करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द एनालिसिस प्लान। फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एज डिस्क्राइब्ड इन द प्लान। सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस स्टेट किया, फिर उसके लिए एनालिसिस प्लान बनाया, फिर उसके सैम्पल डेटा को एनालाइज करना शुरू किया, और अगर उसमें हमें कुछ मिलता है तो वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट द रिजल्ट। सो वी हैव अ यूज केस। 4 लोग हैं हमारे पास, लीना, कैथरीन, फुरकान और असद, और इन सब की आदत है या इन सब ने गलती ये की है, दे हैव बंक अ क्लास। इन चारों ने क्लास बंक की है। सो एज अ पनिशमेंट इनको सज़ा ये मिली है कि हर हफ्ते इन्होंने क्लास को साफ करना है। तो लीना, कैथरीन, फुरकान और असद, इन्होंने ये डिसाइड किया कि वी हैव टू टेक अ बॉल, और सबके नाम की चिट उस बॉल में डाल देते हैं, लीना के भी, कैथरीन के भी, फुरकान के भी, असद के भी। और फिर करते ये हैं कि जिसका नाम निकलेगा वो रोज सफाई करेगा क्लासरूम की। वेरी सिंपल। तो हुआ ये कि 3 दिन तक उन्होंने इसी प्लान को अडॉप्ट किया। सो फर्स्ट डे द नेम ऑफ लीना कम्स आउट, द सेकेंड डे द नेम ऑफ असद कम्स आउट, the third day the name of Catherine comes out, but 3 days passed, there is no name of Furqan. So how we can know that Furqan is not biasing or Furqan is not cheating and the event is free of bias? So let me explain it with the help of probability. So let us see. What is the probability that Furqan is not cheating? Because 3 days passed, 3 दिन हो चुके, फुरकान का नाम नहीं निकला है। तो if Furqan not picked for 3 days, so how many total number of people are? There are 4 number of people, and we are checking that Furqan picked for a day. 4 लोग हैं, एक दिन फुरकान की बारी आ गई। 1/4 is the probability, but we have to decide Furqan not pick for a day. So whenever जहाँ पर भी not आ जाए वहाँ पे अगर probability निकालनी हो तो you have to minus it by 1/4. So 1 minus 1/4 क्या होगा? 3/4. So it is the probability Furqan not pick for a day. अगर फुरकान का 3 दिन तक नंबर नहीं आ रहा, so what we have to do, multiply these 3/4 3 times, 3 दफ़ा या 4 दफ़ा। फुरकान नॉट पिक फॉर 3 days. सो आप इसको क्या करें, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, 4 मरतबा मल्टीप्लाई कर लें। इफ़ इट इज़ फॉर 4 days यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 4 times. बट स्टैटिस्टिक्स के जो लोग हैं उन्होंने थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन कर दिया। 12 दिन हो गए फुरकान का नाम नहीं आया, तो आप इसको क्या करें, 12 मरतबा मल्टीप्लाई कर लें। तो स्टैटिस्टिक्स के लोग कहते हैं अगर आप 3 दिन तक नाम नहीं आया, ठीक है, 0.42 अप्रॉक्स, इट इज़ गुड, नो इशू, बट इफ द प्रोबेबिलिटी of not coming the name of, not picking the name of Furqan is less than 0.05, यानी अगर ये जो probability आप निकाल रहे हैं 3/4 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करके, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके या 12 मरतबा मल्टीप्लाई करके, अगर ये 0.05 से कम हो जाती है तो हम इस बात पर श्योर हैं, या स्टैटिस्टिक्स के लोग ये कहते हैं द इवेंट इज़ बाइस्ड। If it is 0.05 greater than 0.05, we can still assume that Furqan is not cheating and there is a game, there is no name of Furqan coming out. लेकिन अगर 12 दिन हो जाते हैं और probability आप देख रहे हैं कितने भी दिन हो जाते हैं, not for 12 days, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, statistics के लोग कहते हैं कि if probability decreases to 5%, means less than 0.05, you can see it is I have shown it in 12 days. So the probability of Furqan cheating is very high. So statisticians defined a threshold value which is 5%. So this lecture is about 2 terminologies. The one is about confidence interval, the second is about hypothesis testing. That's all for today. If anyone have questions, then he or she can ask. Thank you so much.